Harihi Om. So, this is an important topic we are discussing in Kenopanishad. Unless and until we know this thing, the impart of impart and purport of Upanishad will not be clear to us. That is why every day I'm trying to tell you the Upadghata Bhashya by the famous Upadghata Bhashya. Those who are verily scholar in Upanishad and those who are sadhaka of that Shravan Manan Nididhyasan, for them that Upadghata Bhashya is verily important. Why? Now, Upadghata Bhashya only clears the direction of sadhana. Sadhana is a very, very practical thing. For us, sadhana means, going to the jungle or going to the mountain or cave and doing something physical thing is sadhana. If you ask anyone else, he'll tell how much sadhana he does, what he does. For 14 years, he did not take any rice and roti. अरे तो जगत की खाना बच गया उसमें साधना क्या हुआ? उन्होंने इतना समय तक प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? साधना होगा बोध की. All the spiritual practices are related to the realization. And that realization is self realization and the realization of the Jagat, the substratum of the Jagat, who is the creator of the Jagat. Whenever we will know the creator, we can know the creation. I'm not disrespecting the sadhana others are doing. I do pranam to the sadhana and the sadhakas. But our path is according to Adi Shankaracharya ji, which has been told by Sadashiv, Mahadev, and the only sadhana is Shravan Manan Nididhyasana. And before that, what about the acknowledgement of other sadhana? If this is for the purification of our mind, we also acknowledge that. Joita, please switch on your video if possible. So the thing is, why like this? I think so many days you are in Shravan Manan Nididhyasan. So you know what is the impact of Shravan Manan Nididhyasan. If we are clear about our life, about the direction of the life, about the direction of the realization. In life, we don't know what is the aim of life. We are running. Since our childhood, we are running. And when we are in the threshold of final rights, we can't understand because we don't know the aim of our life. We get admission in the good school, there is a purpose.
then good colleges, good result, enormous studying, then running after the job or business, earning money, having married, and then so on. Children, samsar. But why? We don't know. Our answer is everyone does. So I also do. Life should have some particular aim. If life requires a particular aim, then sadhana also requires a particular aim. In sadhana, there should be a direction. We should know what we need actually, what we want, why we will do sadhana, what is the purpose. Otherwise, khao piyo mast raho. What is the requirement of sadhana? Bhagwan Shankaracharya is telling, etasmat cha pratyagatma brahma vijnanat samsara vijam ajnanam kama karma pravritti karanam asheshatah nivartate. If you have the self-realization, Atma Jnana, if you can know about your own self, that who are you, all your kamana, kama pravritti, everything. What is kama pravritti, Swamiji? Kama pravritti is desire, लेकिन काम प्रवृत्ति की कारण भी चला जाता है. What is the cause of desire? Ajnana. What is the cause of samsara? Why we do samsara? What is the purpose? Because avidya. Avidya is such a thing which makes us fool always. Etasmatcha pratyag atma brahma vishaya jnanat samsara vijam asheshatah nivartate. Samsara vijam kama karma pravritti karanam. Okay, everything gets distracted. इस आत्म विषय ज्ञान के द्वारा अज्ञान पूरा के पूरा चला जाता है. व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉरो, स्वामी जी? जीवन में जो भी दुख आए आपके जीवन में, चाहे वो सांसारिक, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, कुछ भी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जो भी हो, द कॉज ऑफ सॉरो इज इग्नोरेंस. कॉज ऑफ एनी सॉरो. आप विचार करके अगर नहीं इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, तो स्वामी जी उनके लिए मेरा ये हुआ था, इसके वजह से मेरा ऐसे हुआ. हम लोग के पास यही युक्ति रहते हैं. बट इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग, यू विल कम ignorance, ignorance, ignorance. And ignorance is the cause of kamana and karma pravritti. Avidya, kama, karma. Because of ignorance, there is desire. Because of desire, we do something else. And whenever we do karma, we incur papa and punya also. And samsara is going on.
And after death also, samsara doesn't end. Samsara doesn't end means दुख का निवृत्ति नहीं होता। यही जन्म मृत्यु का प्रवाह चक्र की मूल है, यही अज्ञान। तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति मंत्रवर्णः। रेवा अम्मा, after the class, can you ask the question? Please write it down. I will listen to your question. तत्र कः कोमः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति मंत्रवाद। ईशोपनिषद में इस मंत्र की उल्लेख है कि जो ज्ञानी who has realized his own self, जिनका आत्मज्ञान हुआ है, जिन्होंने पूरा जगत में इंक्लूडिंग हिज ओन सेल्फ एकत्व का दर्शन करते, वननेस, उनका और मोह क्या है जीवन के बारे में, उनका शोक कहां पर है? तरति शोकम आत्मविद। जो व्यक्ति आत्मविद है वो शोक को पार कर लेता है, दुख को पार कर लेता है। छांदोग्य श्रुति 7.1.3 तरति शोकम आत्मविद। यहाँ पर नारद जी का प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद की 7वें अध्याय में। जो व्यक्ति आत्मज्ञ है उन्होंने शोक को अतिक्रम कर जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्म तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद 2.2.9। इसमें क्या है, श्रुति और बोल रहा है कि जो व्यक्ति उस कार्य कारण रूप पुरुष को देख पाते हैं, जब रियलाइजेशन होगा ना, आपके पास अलग सत्ता नहीं रहेगा। विचित्रता दिखाई देगा लेकिन आपके पास पूरा के पूरा नॉलेज है कि ये क्या है। जैसे सुनार के पास आप जितना भी गहना दिखाओ वो सोना दिखता है। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं ना, अब दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी थीम पूजा, बच्चा लोग पूछते हैं माँ इसमें दुर्गा कौन है? रुको बेटा पहले मुझे समझने दो। अभी पूजा थीम ऐसा हो गया, माँ दुर्गा ही पहचान नहीं पाती। कोई वैनिटी बैग लेके, कोई ऐसे टॉडलर लेके। ये उत्सव मनाने की चक्कर में द मेन थीम ऑफ दुर्गा पूजा इज रियली वैनिश्ड। तो जो मूर्तिकार है वो अगर पंडाल देखने जाते हैं, सपोज ही इज हॉपिंग पैंडल टू पैंडल, उनके पास मूर्ति ही मूर्ति है, जो भी है सब मिट्टी है। अनामिका मा वीडियो ऑन करते हैं। तो द थिंग इज मूर्ति जितना भी हो सब मिट्टी है। तो जो व्यक्ति कार्य और कारण रूप उस पुरुष को देख पाते हैं, उनका हृदय ग्रंथि मतलब द नॉट्स ऑफ द हार्ट,
बोला हार्ट में भी नॉट है स्वामी जी। ये नॉट्स ऑफ द हार्ट इज वासना। ओके, बोला कितना नॉट लगता है, कितना गीट होता है। हृदय में तो ऐसे नहीं पड़ा कि इधर गांठ। हृदय ग्रंथि मीन्स वासनास, डिजायर्स। ये भेद हो जाता है, सारे संशय छिन्न हो जाता है, सारे कर्म क्षय हो जाता है। तो आपको लगता है, लगेगा कि स्वामी जी पूजा करने से मुक्ति क्यों नहीं होगा। अब बताइए। मैं घंटों तक पूजा करता हूं, मेरा घर में कितना मूर्ति है आपको पता नहीं। जैसे मूर्ति की दुकान लगा हुआ है, एक भी देवता फेमस मैंने छोड़ा नहीं। और जहां जहां तीर्थ में गया, सब जगह से एक एक करके लाया। और हमारे पूजा घर में जगह नहीं था, तो फ्रिज के ऊपर भी रखा, टीवी के ऊपर भी रखा, और सब जगह मैं धूप अगरबत्ती करते। आप मुझे बताइए पूजा करने से मुक्ति क्यों नहीं होगा। प्राणायाम मैंने नया नया नहीं, बहुत सालों से सीखा, जो ऋषि मुनि लोग करते आ रहा है। क्यों नहीं होगा। याग यज्ञ से क्यों नहीं होगा। इतना खर्च करके, इतना मेहनत करके करते हैं। कितना लकड़ी, कितना घी लगता है पता है। पंडित जी कितना चार्ज करते हैं इस यज्ञ के लिए, ये उस यज्ञ के लिए हो। इतना खर्च करने के बाद भी मुक्ति क्यों नहीं होगा। कर्म सहितादपि ज्ञानाद एतत् सिद्ध्यति इति चेत। पूर्व पक्षी मतलब जो लोग कर्म कांड करते हैं, रात दिन यज्ञ अनुष्ठान ये सब कर रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं देखिए, आप जैसे हर चीज में श्रुति का कोट करते हैं ना, छांदोग्य उपनिषद 7.1.3, मुंडक उपनिषद 2.2.9, ये सब हम लोग जानते हैं। मुझे ज्यादा मत सिखाओ। लेकिन कर्म सहितात अपि ज्ञानात एतात सिद्धति इति चेत। कर्म के साथ साथ ज्ञान के द्वारा भी वही सिद्ध होता है। कहाँ लिखा है। स्वामी जी आप ठीक से पढ़े नहीं, आपने पढ़ाया है। आप पहला उपनिषद क्या लिया था स्वामी जी, क्यों ईशोपनिषद, भाई अभी मेरा ही संकोच आ रहा है। ईशोपनिषद लिया था। आप उधर 11 नंबर मंत्र देखा था। हाँ देखा क्या है। उधर लिखा नहीं है, विद्याम च अविद्याम च यस्त्वद् वेदो भयम सह। वहां पर तो ज्ञान और कर्म एक साथ अनुष्ठान करने के लिए बताया है। अच्छा, तो ज्ञान के साथ कर्म की क्यों अनुष्ठान नहीं हो सकता है, मतलब कर्म करते करते क्यों ज्ञान नहीं होगा। आपको पता है ये संसार करते करते कितना मेरा सांसारिक नॉलेज हो गया। आप एक दिन आइए, मैं आपका कोर्स ले सकता हूं, संसार क्या है। तो कर्म करते करते ही तो ज्ञान होता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्यों कर्म से नहीं होगा। तो देखिए, वज्रसेनय के तस्यान्य कारणत्व वचनात् जायामे स्यात् पुत्रेणायं लोको यज्ञो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः। भाई
मैंने जो थोड़ा थोड़ा उपनिषद पढ़ा है, उसमें बृहद अरण्य उपन्यास बोल के एक किताब है। अरे नहीं, ठीक से बोलो। ये बृहदारण्यक उपन्यास नहीं, उपनिषद है। आप जानते हैं, एक महान संगठन अभी बहुत बड़ा, उधर ऐसे ही चलता था। पढ़ाई बंद हो गया था और स्वामी लोग प्रवचन करने जाते थे। तो 1958, मोस्ट प्रोबेबली 58 या 60, एक स्वामी एक सभा में गया और वो एक ही बात बताया कि बृहदारण्यक उपन्यास में है। पेपर में आ गया था कि इस मठ की स्वामी पूरा प्रवचन में बृहदारण्यक ठीक से उच्चारण नहीं किया और उपनिषद की जगह पर उपन्यास बताया। बोर्ड मीटिंग हुआ, एंड सिंस 1958 स्वामी लोगों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर चालू हुआ कि दे शुड बी क्वालिफाइड इन द स्क्रिप्चर ऑल्सो। अब तक चालू है वो। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग सेंटर, जैसे सांदीपनी में है हमारा। तो ठीक है, भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे देखो, वो नहीं है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो शंकराचार्य जी ने लिखा है ना, वाजसनेय के, वाजस वाजसनेय मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में वही कर्म के साथ ज्ञान की अनुष्ठान, उनका फल बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। वहां पर क्या बताया है? जाया में स्यात्, बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.17, जाया में स्याद अथ प्रजा ये याथ वित्तम में स्यादथ कर्म कुर्वीयेति। भगवान, मेरा शादी नहीं हो रहा है, सबका शादी हो गया, मेरा वाइफ नहीं। बृहदारण्यक उपन्यास में है, उपन्यास नहीं उपनिषद। जाया में स्याद, इसके लिए यज्ञ कर रहा है। आज की बात नहीं, 1000 साल पहले। और क्या क्या कामना कर रहा है? मेरा पुत्र हो जाए, मेरा वित्त हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए। ये प्रार्थना करते करते उन्होंने यज्ञ किया। जाया, जाया मतलब स्त्री, जाया में स्याद। वो बोले ना, मे पीस बेस्टो अपॉन यू। ऐसे जाया में स्यात् अथ प्रजा ये याथव, मतलब संतान उत्पन्न हो जाए। उसके बाद क्या? वित्तम में स्यात्, मेरा बहुत वित्त पैसा हो जाए। अथ कर्म कुर्वी ये थी, इसके लिए मैं कर्म करता हूं। तो पुत्रेण अयम लोक जयो, संतान के द्वारा ही इहलोक, मतलब मनुष्य लोग लाभ किया कर सकते हैं। क्योंकि संतान क्या करते हैं ना, फाइनल राइट्स के बाद तर्पण करते हैं, ये सब पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत सारे कर्म करते हैं। उसमें क्या लाभ होता है ना, इस मनुष्य लोग फिर से लाभ होता है। क्योंकि हमारा कितना बोलते हैं जो, अगले जन्म में मैं और
लड़की नहीं हूंगा, मुझे पता है। इन नेक्स्ट लाइफ आई वांट टू बी योर हस्बैंड, देन यू कैन अंडरस्टैंड हु एम आई। इस जन्म में तो मैंने ठीक से समझा नहीं पाया। इन नेक्स्ट लाइफ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हस्बैंड इज। आई वांट टू बी योर हस्बैंड। तो कैसे करेगा? उनको पितृ तर्पण, ये तर्पण, वो तर्पण हो रहा है, और उनका मनुष्य, फिर से मनुष्य जन्म। हाँ, अभी भी ये चालू है। कोई किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, बोला मेरा ठाकुमा आया। ठाकुमा आया क्या रे? बोला हाँ, उनका ये चला गया था, उनका सारे लक्षण है, उनका हंसी एकदम मेरा ठाकुमा जैसे, उनका दांत ठाकुमा जैसे, उनका गुस्सा ठाकुमा जैसे, सब ठाकुमा ठाकुमा ठाकुमा। বাজি কথা নয়, সেই রকম লোক এখানেও আছে। আমি তো কারোর নাম বলি না, টেলিফোনিক কনভারসেশনে আমাকে পরিষ্কার বলেছে, জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। সুতরাং विद्या माने तो क्या हुआ? तो कर्म का उद्देश्य कुछ अलग होता है। पुत्र के द्वारा या संतान के द्वारा इस पृथ्वी लोक, पितृलोक, विद्या के द्वारा देवलोक तक अब जा सकते हैं। विद्या के मतलब औपनिषदिक विद्या नहीं, उपासना। विद्या मतलब इधर उपासना। इति आत्मनः अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम् उक्तम वाजसनेयते। ऐसे उपनिषद में ऐसे ही बताया गया है कि ज्ञान को, कर्म सहित ज्ञान को, क्या बताया, आत्मज्ञान के सिवा और कुछ हो सकता है। हाँ, आप बहुत पूजा पाठ, याग यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म, आपका बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, गाड़ी बाड़ी एक छोड़कर, दो छोड़कर, तीन छोड़कर 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ अभी नहीं, मृत्यु के बाद भी वी वांट टू सिक्योर दैट, लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? SIP आप लोग करते हैं ना, कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इतने साल के बाद ये होगा। वेद में भी हमारा ऐसे कर्म राशि है कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा। बहुत कम लोगों के पास ये नॉलेज है, ये मुक्ति क्या है, व्हाट इज आत्मज्ञान, व्हाट इज मोक्ष। नोबॉडी नोज। आत्मनः अन्यस्य, आप जो भी करो, श्रवण मनन निधिध्यासन के सिवा आप जो भी करो, बहुत कुछ हो सकता है आपका, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। श्रुति का अभिप्राय, उपनिषद वेद की अभिप्राय, इच्छा कभी नहीं कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय। श्रुति बार बार बोल रहा है, सन्यास के सिवा ज्ञान संभव नहीं है। तब तो स्वामी जी मेरा काल से क्लास करने का कोई हेतु ही नहीं, क्योंकि इस लाइफ में सन्यास का कोई चांस नहीं है मेरा। आई नो दैट। क्यों? माई हस्बैंड विल नॉट अलाउ। नहीं तो मेरा बेटा बेटी नहीं अलाउ करेगा। और उपनिषद वेद आचार्य क्या बोल रहे हैं? सन्यास के सिवा आत्मज्ञान संभव नहीं है। नाउ भगवान शंकराचार्य जी विल मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सन्यास। तत्रैव च परिव्राज्य विधाने हेतुः उक्तः किं प्रजया करिष्यामः।
येषां नो अयमात्मा अयम लोकः। ये बृहदारण्यक श्रुति है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22। 4.4.22। तो क्या है, भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप बृहदारण्यक उपनिषद कोट कर रहे तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैं भी गुरु के पास जाकर ये बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ चुका। उन्होंने बताया है, किम प्रजया करिष्यामः, प्रजा के द्वारा मैं क्या करूं। क्योंकि हमारा जो आत्मज्ञान, ये ना तो मेरा माँ बाप हेल्प कर सकते, ना मेरा पुत्र, ना मेरा पुत्री, कोई कुछ नहीं। मैं उठ नहीं पा रहा हूं, उठने के लिए कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन जीवन में कोई कुछ चीज है जो मुझे खुद को ही करना पड़ता है। इफ यू आर टायर्ड, और मैं बोल रहा हूं अरे टायर्ड हो तो क्या है, ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे स्वामी जी, ये कैसे बात हुआ? टायर्ड मैं हूं और आप सो लेंगे? आपको भूख लगा है, बोला अरे ठीक है अम्मा कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा आज शाम को। आपका भूख मिटेगा? इन लाइफ समथिंग इज वेरी पर्सनल, जो आपको ही करना पड़ेगा। आपका बीमार, मतलब यू आर सिक, सो यू नीड मेडिकेशन, you are hungry, you need food. If you are having ignorance about your own self, you have to lit up. There is no other way. That is why Upanishad स्वयं प्रश्न कर रहा है, किम प्रजया करिष्यामः। ये पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, ये सब लेकर क्या करूं मैं? इसके द्वारा तो मेरा आत्मज्ञान नहीं होगा, वरं डिस्टर्ब होगा। क्या तुम्हारा क्लास हुआ? चाय का टाइम हो गया। क्या सुबह सुबह चला के रखते हैं? आत्मज्ञान की प्रतिभा हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। प्रजा के द्वारा मतलब आत्मज्ञान नहीं होता। तत्र अयम हेतु अर्थ, ऐसे बोलने की कारण क्या है? इसके कारण प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्या भी, प्रजा कर्म और उसके साथ साथ जो जो विद्या, मतलब उपासना, उसमें से हमारा मनुष्य लोक में बहुत समृद्धि हो सकता है। उपनिषद बोल रहा है मृत्यु के बाद भी हमारे पितृलोक, देवलोक, ये सब मिल सकता है। मतलब जितना अनात्म वस्तु है, सब कुछ मिल सकता है पूजा उपासना के द्वारा। लेकिन मैं सिर्फ आत्मा को ही चाहता हूं। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। न च अस्माकं लोकत्रयम अनित्य साधन साध्यम इष्टम। अनित्य जो लोकत्रय है, देवलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं नित्य लोक, जहां से आना जाना नहीं होता है, जहां दुख नहीं होता, जहां पर आनंद ही आनंद है। बाकी कोई भी अनित्य लोक मेरा काम्य वस्तु नहीं। ये नित्य लोक कैसे है स्वामी जी? येषामस्माकं स्वाभाविकः अजः अजरः अमृतः अभयः न वर्धते कर्मणा न कनीयान् नित्यः
च लोकः इष्टः, जो हमारे स्वाभाविक है, मतलब हमारा स्वभाव स्वरूप, जैसे आग की स्वरूप है प्रकाश और ताप देना, यही इनका स्वरूप है। आप सूरज को जितना भी पूजा करो और गाली दो, ये प्रकाश और ताप ये देंगे, क्योंकि ये इनका स्वरूप है। बर्फ ठंडा ही देता है, इनका स्वरूप है। हमारा स्वरूप है अजह, आत्मा के रूप में। मैं जन्म मृत्यु रहित है, मैं अमृत हूं, मेरा मृत्यु नहीं है। मैं अभय हूं, मेरा भय नहीं है। कर्मणा न वर्धते, कर्म के द्वारा जिनका वृद्धि भी नहीं होता है, न कनीयान, ह्रास भी नहीं होता है, ऐसे नित्य लोग, यही हमारा अभिप्रेत है। हमारे जीवन में आज कुछ बहुत बड़ा है, कल घटा है, हमारा ऐसा होता है। संस्कृत चैंटिंग क्लास, किसी ने फोन करके 2-3 दिन से, स्वामी जी ये चैंटिंग सिखाएंगे, ये चैंटिंग सिखाएंगे, ये चैंटिंग, हाँ सिखाऊंगा। हर रोज फोन आ रहा है, विश्वास कीजिए। सुबह भी फोन आया, स्वामी जी आप करेंगे, करवाएंगे, तो हाँ करवाऊंगा। क्लास में नहीं आया, मैंने फोन किया, उत्तर नहीं दिया। बाद में मैसेज आया, टुडे इज माय मूड ऑफ, बिलीव मी। सो द थिंग इज, अगर प्रश्न है, डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस थिंग्स? If you want to get rid of all those things, we visit psychiatrist after psychiatrist, जितना कॉस्टली हो सकता है, लाभ कुछ नहीं होता, बीमारी और बढ़ता चलता है, एक दिन कम होता है, दूसरा दिन। ओनली वन डॉक्टर इज उपनिषद एंड इट्स प्रेस्क्रिप्शन, आत्मज्ञान लाभ करो और सारे दुख से पार हो जाओ। जितना भी दुख आपके जीवन में है, सबसे बाहर निकल जाओ। That is the only solution. Harihi Om Tat Sat. I wanted to know, आपने बताया अबाउट इग्नोरेंस, हाँ, एट व्हाट स्टेज? सी श्रवण में इग्नोरेंस नहीं जाता है पूरा, मनन करने से थोड़ा बहुत इग्नोरेंस जाता है, क्या निधि ध्यासन में ही इग्नोरेंस पूरी रूप से जाता है? आप जिसे श्रवण बोल रहा है, उपनिषद उसे श्रवण नहीं बोल रहा है। आपके पास श्रवण करना सिर्फ सुनना है। उपनिषद के पास श्रवण मतलब इट्स एन ऑल इंक्लूसिव वर्ड। श्रवण कैसे होगा? ना श्रवण मनन निदिध्यासन एक ही साथ हो जाता है। ये तीन अलग स्टेज नहीं है। जीवन में पहले अलग स्टेज हो सकता है कि मैं गुरु के पास सुना, ये उसके बाद जाकर मैं मनन करूंगा, मनन किया। आई विल डू लॉजिक, देन निदिध्यासन मीन्स आई विल गेट एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज। इंडस्ट्री, या बट थ्री आर नॉट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साधना। आप जब क्लास में बैठेंगे, यू हैव टू शट ऑल द गेट्स ऑफ योर माइंड। हमारा ऐसा नहीं रहता। हमारा तो इधर देखो की को चौखाने, क्लास चल रहा है, उसके समय मेड आ गया है, इधर ठीक से झाड़ू लगाओ, उधर 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 देखो, आंख नहीं है क्या? क्लास चल रहा है। श्रवण मनन निदिध्यासन एक वस्तु है।
when you should close not only your physical doors and windows, you have to close your mental doors and windows. When your single pointed mind will be only focused in the topic, in the subject matter, that is Atma Jnana. एंड सुनते सुनते ही आपको मनन होगा, यस यस, एंड यू विल रियलाइज. आप सोचिए ना, श्रवण कैसे है ना, एक सलाई जलने की जैसे. क्या आप ऐसे करके करेंगे, 3 दिन के बाद उनका उजाला आएगा, ऐसा होता है क्या? आपको, आप फिजिकल लेवल में भी किसी को ऐसे होता है ना, गुदगुदी दे दिया तो हंसने लगा. कोई कोई व्यक्ति ऐसे है, 3 दिन के बाद हंसते हैं. तो बोला स्वामी जी मेरा चमड़ा गंडार जैसे है, 3 दिन के बाद वो सेंसेशन पहुंचते, उसके बाद हंसता हूं. ऐसा नहीं. ये श्रवण मनन निधिध्यासन एक वस्तु है, एक ही साथ होगा. श्रवण के साथ साथ मनन, मनन के साथ साथ निधिध्यासन. ये स्टेज आपको होना चाहिए. क्लियर? श्रवण, सही श्रवण कैसे हो? How do we get the right श्रवण? We hear, we know, we read so much, we ज्ञान मतलब ये, we don't say ज्ञान मतलब whatever we are learning to श्रवण only, but this is not श्रवण, actual श्रवण. आपने How do सुना we get है that कि actual श्रवण? कोहिनूर इज द कॉस्टलीस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड. आई डोंट नो, इसके बाद भी और कुछ निकला हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो. मेरे नॉलेज में उतना ही है. तो मैं इतना इंटरेस्टेड हो गया कि मेरा सब्जेक्ट मैटर ही डायमंड हो गया. मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं सब्जेक्ट ले लिया, मेरा स्पेशलिटी व्हाट, क्या पढ़ते हो? डायमंड लेके पढ़ते. तो कोहिनूर कोहिनूर हीरा के बारे में आपका इतना नॉलेज है कि गूगल भी आपसे सीख सकता है, लेकिन आप गरीब है. ज्ञान अर्जन करते करते चला गया. अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग दिस स्टोन, जब आपके पास वो आ गया ना, बाकी ये वो ऐसा है, इनका डायमेंशन ऐसा है, उनका वजन ऐसा है, वो इतना सालों से प्रेशर में रहता, इसलिए ऐसे हुआ. नॉट रिक्वायर्ड. चीनी या मिठास क्या वस्तु होता है? जैसे आजकल जो बच्चा पैदा होता है, उनको ना तो मधु देता है ना कुछ देता है. डॉक्टर ने बताया एक्सटर्नल सॉल्ट, एक्सटर्नल शुगर, ये सब आप मत खिलाइए. और ऐसे ही बच्चे को आप बड़ा किया, 10 साल, 12 साल, 15 साल, उनको पता नहीं, सब दोस्त लोग बोलते ओहो काल उस अंकल ने ऐसा सुंदर मिठाई एक खिलाया. भाई मिठाई क्या है? उनका प्रश्न है. तो बहुत लोग उनको गूगल सर्च करके दिखाया, पन्ना आफ्टर पन्ना लिख दिया, समझा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उनके नॉलेज में. और जब वो मिठाई चख लिया ना, तब वो पन्ना बेकार हो गया. यू हैव टू ट्राई टू ओन अप दैट नॉलेज. Still now it is the knowledge of the Upanishad. Unless and until that knowledge becomes your own knowledge, it will not, work properly. यही तो डिफिकल्टी है सर. क्यों डिफिकल्टी? किसने माना किया है? आपकी मना आचार्य, आपके शास्त्र, आपकी भगवान आपको नॉलेज देने के लिए तैयार है, बैठे हुए हैं. आप ले नहीं रहे हैं.
ये तो नहीं कि आपके पास मिल नहीं रहा है। तो जिस डिफिकल्टी के वजह से आप ले नहीं पा रहा है, उस डिफिकल्टी के ऊपर काम कीजिए। क्लास में उसके ऊपर भी चर्चा होता है कि हाउ कैन आई क्रॉस ओवर माई डिफिकल्टीज, नॉट फिजिकली, मेंटली। ऑल द प्रॉब्लम्स बिलोंग इन माई माइंड, बिलोंग टू माई माइंड। बाहर में प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत फहमी है। ऑल द प्रॉब्लम्स आर इनसाइड। क्लियर? सप्तर्षि बोलो। हाँ, ওনিং আপ নলেজটা মানে কি? চিনির দানা খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া অ্যাপ্লাই। এবং বোঝা মিষ্টি স্বাদটা কেমন। আচ্ছা। দ্যাট ইজ টু ওনিং আপ। ইনভাইট, টু ইনভাইট। বাইটেড না হলেও গিলেও খেতে পারো বাবা, আখের রস কি না আর না, ছিল? ইনভাইট করা, নলেজটা ইনভাইট করা। ইমবাইব, ইয়েস, ইয়েস। হ্যাঁ, অঙ্কিতা বল। আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, করেছিস, এবারে বল। তাতেও তোর কথা শোনা যাচ্ছে না। তুই কি বক্সে শুনছিলি? তোর একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না রে মা। আরে একটাই তো এমনি করা, মাইকের মতো, সেটা আঙুল দিবি, ব্যাস হয়ে গেছে। বল। শোনা যাচ্ছে না। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, ডাক্তার দেখাস ওকে। ওটা ঝাড়ফুঁক করলে কিছু হবে না। ঠিক আছে। আরে আজকের ক্লাস বোঝা গেছে তো? ব্যাস ব্যাস, একটু একটু বোঝা গেলেই যথেষ্ট। এখনই পুরো বোঝা গেলে পুরো উপনিষদটা পড়াতে হবে তো, মুশকিল। एक बार किसी ने रामकृष्ण मिशन में आकर तो पूछा, तुम क्या चाहते हो? ना, मैं परमहंस बनना चाहता हूँ। बोला, भाई तुम्हारे लिए इस प्लेस नहीं है। बोला, क्यों? परमहंस होने के बाद ही इन लोग निकाल देगा, क्योंकि ये परमहंस बनाने की कारखाना है। जैसे कॉलेज में होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद चलो, ग्रेजुएट लोगों के लिए कॉलेज नहीं है। इफ यू आर नॉट ग्रेजुएटेड यू आर हैविंग द। तो বোঝা গেছে তো? একটু একটু বোঝা হলেই যথেষ্ট। দিনের শেষে দেখবে পুরোটা বুঝে গেছে। হাউ টু ইগনোর ব্যাড ওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাড পিপল ইন উপনিষদ। ব্যাড ওয়ার্ডস মানে, ও, লোক খারাপ কথা বললে সেগুলোকে তুই কিভাবে ইগনোর করবি? ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড দ্য পিপল অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্স। ধর, আমি এই ক্লাস নিচ্ছি, কেউ একজন ক্লাস শোনার পরে অন্য কিছু বলতে থাকলো। ডু আই হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার ইট? আই এম হ্যাভিং দ্য কন্ট্রোল ওভার মাই মাইন্ড, যে না, কোথাও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে, আমাকে I have to do a correct response towards the thing. Situation is not in my hand. So the thing is, when suppose আমাকে কেউ বলল, খুব গাল দিল, যে আপনি এত ফর্সা, এত হ্যান্ডসাম, কি লম্বা চওড়া। এখন আমি রেগে গেলে হবে? বিকজ আই নো হু এম আই, যে আমি ছোটখাটো মানুষ, গায়ের রং কালো, আমি মোটা লোক, বেঁটে লোক। এখন আমাকে যে যাই বলুক, আমি যদি সেটা না হই, সেটা আমি জানি, তাহলে আমার রাগ করার কোনো কারণ নেই, খুশি হয়ে যাওয়ারও কিছু কারণ নেই। 100 বার আয়নায় দেখলে নিজেকে, আমি তো আর উত্তম কুমার হয়ে যাব না। সো ইউ হ্যাভ টু নো হু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি, ফার্স্ট থিং।
Second thing, you have to know the art of ignoring, and you know that. ধর তুই যখন আশ্রমে আসিস, কয়েকশো লোককে তুই দেখিস, একজনকেও মনে রাখিস না, তোর চোখ সবাইকে দেখে, তুই জানিস এটা মনে রাখার বস্তু নয়, এটা আমার কাজের জিনিস না। Whenever you will give priority anything to any, ভগবান ছাড়া যে কোনো কিছুকে প্রায়োরিটি দেবি, সেও তোর প্রায়োরিটি চাইবে। ক্লিয়ার? সে ব্যক্তি হোক, বস্তু হোক, শব্দ হোক, প্রায়োরিটি আমাদের জীবন চালায়। তুইও তোর জীবন চালাস না, কেউ তোর জীবন চালায় না, তোর প্রায়োরিটি তোর জীবন চালায়। Set your priority in your life. Clear? Hari Om. Thank you so much.